capillary action. So in the previous lecture, we studied about surface tension. Surface tension was a force primarily due to adhesion between cohesion between similar molecules. So in case of surface tension, cohesion was responsible, whereas in capillary action, you have adhesive forces between dissimilar molecules. For instance, say I have this tub which is filled with say water up till this level. I immerse a hollow tube into this tub. So what do you expect? The level of water in this tube will be up till level this only, or it will be higher or lower? Higher. Higher. So why it is so? Due to cohesive forces, capillary action. Adhesive forces. Adhesive forces means the water is getting attracted towards this glass. So to increase the interaction, it is increasing its surface area. So in the process of increasing the surface area, this essentially rises greater than the actual level in the tub. So this is called capillary action. And this rise in this excess rise is actually inversely proportional to the diameter of the tube. So the lesser is the diameter of the tube, more rise you will see. Why is so? Sir, because it will we need to increase the area, sir. So lesser diameter, thus more height. So lesser diameter means the surface area initially is little bit less. So to increase the same surface area, it will have to rise to a greater height as compared to the thicker tube. Is that clear? But sir, doesn't it contradict the fact that the forces of cohesion are much more stronger than adhesion? Last time you said that cohesion is stronger than adhesion. That is there. So still you will have a free surface here. Here as well. Yes, sir. So that is, pardon me? Sir, could you explain the role of area, sir, in the adhesive or capillary action, sir? Say for instance, you might have seen if you place a drop of water on a surface, how does the drop of water look like? It looks like somewhat like this. Yes, sir. Yes, sir. And if you drop a drop of mercury, how does it look like? Yes, Like it this? becomes. So what like is this? A bearing. Yes. What is this angle? Contact angle. Around 45. So here it is less than 90 degrees. And here it is greater than 90 degrees. And cohesion is responsible for this. So what happens is, if it is less than 90 degrees, what does that tell you? Say cohesive force by C, adhesive force by A. And I say this is case 1, this is case 2. If I ask you, I'm asking you now 2 questions. First of all, C represents cohesive, A represents adhesive. So I'm asking you, say C1, C2. What sign should I put here? What, sir? C2 is greater than C1. C1 should be less than C2. C2. Because in case of mercury, it is not actually trying to increase its surface area, because it is not trying to increase surface area because it is not getting attracted toward this surface. It is happy within itself. So that's why the contact angle is greater than 90 degrees. Okay, sir.
Whereas in case of water, although cohesion force is also high, but it has also at the same time attraction towards this glass or this surface. And that's why if I say in terms of adhesion, what should be there? A1, A2. What sign should I put? A1 greater than A2. A1 greater than A1 A2. is greater than A2. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. So please remember, they are always competing forces. You don't have single forces in operation. You have always number of forces in operation, and depending on the circumstances, you say one of them dominates. For instance, say if you have plastic, you have paper. I have, say, two surfaces now. Say one is plastic and say other is paper. You drop a droplet of water on these surfaces. What will happen? What will happen? Or say this is Paper cloth. will absorb it and plastic will not absorb it. So the drop will So be just visible. before absorption, how can you draw the droplet here as you draw it in these cases? Here it will be like this, and here it will be like this nearly. So what Yes, does sir. that, Yes, sir. what does that tell you? सर इसमें कोई सी फोर्स है, प्लास्टिक में कोई सी फोर्स है मतलब, It और means water does not have adhesive force for plastic. It has it for paper or glass. And this is the actual premise behind waterproof clothing. When we say it is waterproof, it does not mean that it is something, a kind of magic. Waterproof means essentially does not wet that particular cloth. सर Yes, सर इसमें एरिया का क्या रोल है, एक बार जो पूछ रहा था मैं ये एरिया बता रहा हूँ एक मिनट. यहाँ तक क्लियर है? So please remember the contact angle, if it is less than 90 degrees, then we say that particular liquid wets the surface. If it is greater than 90 degrees, it does not wet the surface. So that is the role of contact angle. Now I'm coming to the role of surface area. So now please try to see, this is the surface. You have dropped a, say, droplet of water. It is somewhere here. So this is the natural tendency that this angle will be essentially less than 90 degrees. It means it will essentially wet the surface. Say if this is cloth or say wood and all that stuff. Now the role of contact area is, in this case, there is no constraint of contact area. But in these cases, I am drawing two cases here. This is the surface of water. I have one tube like this and the other tube, say, like this. So this diameter is, say, D1, this diameter is, say, D2. So D1 is greater than D2. So water tends to rise in this capillary tube so that it can interact with the surface, because it has attraction with the surface. So to do it, so what it does is it increases the surface area so that it can make maximum contact with the surface of the tube. So if that tendency is to continue in case of this thinner tube also, then what can happen? What do we know? The surface area is 2 pi what? 2 pi r into h. H. 2 pi r1h, or I should say pi d1h, and here it is pi
say this. Is that clear? Yes, sir. Who has asked the question? Is it that clear to that particular person also? Yes, sir. So if D1 is greater than D2, what does that tell you? H2 should be Greater than H1. greater than H1. सर Yes. सर अगर यहीं पे ग्लास की जगह प्लास्टिक ट्यूब होगा तो कैपिलरी रिएक्शन नहीं होगा ना फिर? Capillary action nahi hoga. It may be that if there is no, if say this is instead of plastic, say this is hydrophobic surface. Hydrophobic. What does that mean? Away from water. Repels Don't water. have any attraction with water. So this is just like a hostile person to whom you don't want to talk. So you will tend to reduce your interaction. So what will happen is it will not be even up till this point. It will not tend to rise up above this point. It will be below this point only. So that is the case of hydrophobic surfaces. Any doubts? सर आप तो सर ऐसा कर रहे हो कि मतलब जो पहला ट्यूब है और जो दूसरा ट्यूब है उसका एरिया को मतलब बराबर सरफेस एरिया को बराबर करने की कोशिश कर रहे हो सर आप? हाँ मैं ये कह रहा हूँ. हाँ सरफेस मैं ये कह रहा हूँ मान लो say you want to interact, say this water has some kind of interaction with glass. So in both cases it is glass. Yes sir. So it wants to, irrespective of the diameter, it wants to increase its interaction. So what is the way out? If area is small, then its inherent tendency to increase area can only be done if it increases the height. Yes sir, समझ There is गया. no other way out. Yes sir, yes sir. So that is why it does it like this. Sir. हाँ जी. Sir, so basically, sir, why does water has a tendency to increase its surface area in hydrophilic surfaces? Because it, for instance, say, if you have, say, liking for, say, water has liking for this surface, what will the water tend to do? It will try Okay, to, sir, it will try to increase. Okay, it will try to interact with the surface of that yes, sir. particular material. So what is the way for water to do that? Yes, sir, it will go inside the tube and it will increase its surface area. Its interaction with that particular material. Okay, sir. Okay, sir. So that is as simple as that. Okay, sir. So please remember, this is a very simplified kind of analogy, but this kind of analogy may have certain kind of non-linearities. Although I have put a proportionality sign here, but in certain liquids, they may follow some kind of other relationships. But again, what can be said is that the diameter and height are actually inversely proportional. There may be some other exponent also in certain other liquids, but I am taking the case of the simplest and the most common liquid, that is water. So that is all about capillary action. Yes. Sir, there is a question from a participant in the chat box. Kindly see that. Please. What is the question? Sir, it is written in the chat box, sir. He is not able to speak because he has some mic issue. Okay, I am taking the question. Wait a minute. Okay. हाँ जी. So you have understood capillary action. हमने capillary action surface tension, हमने दो properties we have studied. So what was here? Adhesion force और यहाँ पे cohesion force.
और एक और चीज क्या कॉमन थी दोनों में? से सर प्रेशर, जो सरफेस सर जो टेम्परेचर, सरफेस density, volume, surface tension, capillary action. What is the common thing in all these what we have done till date? सर सर जो सरफेस टेंशन है सर उसमें भी तो एडिशन फोर्स था सर हमारे पास, मतलब Surface tension में एडिशन फोर्स सर उसमें भी तो था सरफेस टेंशन में सर। कैसे था बताओ? क्योंकि सर जब आपने सर कहा था कि जब सोप का पार्टिकल हमने वाटर में गिरा था तो वाटर हाँ मॉलिक्यूल ने आपस में से इंटरेक्शन हटा लिया था और सोप के साथ इंटरेक्शन करा था। हाँ, तो सरफेस टेंशन कम हुई थी ना? हाँ कम हुई थी सर। तो सरफेस टेंशन एक्चुअल क्या कम हुई थी? इसका मतलब आपस में मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन कम हुआ था। यस सर वही हाँ। तो सरफेस टेंशन एक्चुअल क्या हुआ? बेसिकली ये कोहिजन फोर्स ही हुआ सिमिलर एटम्स में या मॉलिक्यूल्स में। यस सर। वो ही रिड्यूस हुआ ना आपके फॉरेन पार्टिकल एंटर करने से। यस सर। तो एक्चुअल में सरफेस टेंशन इज कोहेजन एंड कैपिलरी एक्शन इज एडहेजन। क्लियर है आयुष? यस सर क्लियर। ठीक है। So we have studied pressure, temperature, density, volume, capillary action, surface tension. So what was the common thing in all these? These were for what? Liquids, and they were Static. intensive. Static fluid. What do you mean by static? We did Fluid at rest, sir. Stationary. Stationary, the sir. analysis Stationary. assuming that fluid is stationary. And fluid में कौन कौन आता है? Liquid, And gas, sir. gas. अब मुझे बताइए which property is only defined for liquid? Capillary action, sir. Say this is for liquid. Viscosity. Viscosity nahi, viscosity we haven't yet studied. That is the next topic. After 2-3 minutes I will take up viscosity. Liquid के केस में कैपिलरी एक्शन होता है। सरफेस टेंशन किस केस में हो सकती है? सर गैस में हो सकती है सर सरफेस आप सोच के बताइए, नहीं, गैस के अंदर sir. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में क्लोज होते हैं कि नहीं होते हैं? टेंशन। They are not closed and they don't have They intermolecular. don't move in masses. So My thing is the particles are far apart in case of gases. Gases में दूर दूर हैं particles. yes, sir. It means intermolecular force of attraction is very low. Yes, sir. So can surface tension happen? No, sir. No. So please remember, in gases there is no free surface and there is no surface tension. Then free surface का क्या मतलब है? जब आप ग्लास में पानी डालते हैं, you are able to see a boundary between air and water. अगर एक खाली ग्लास पड़ा है, if I ask you what is the boundary of air, will you able to define the boundary of air? No, sir. So that's why gases don't have any shape. And liquids you have free surface. So surface tension is only for liquids. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर जैसे बबल का केस होता है, अगर स्फेरिकल लिक्विड बबल है ठीक उसके है। अंदर तो सर जो इन लिक्विड की बाउंड्री के दोनों तरफ एयर ही रहती है ना सर, उसमें भी तो होता है प्रेशर डिफरेंस, तो सरफेस प्रेशर टेंशन डिफरेंस होता है। अब जो बबल बना होता है खुद, वो फिल्म किस चीज की बनी होती है? वो तो लिक्विड की होती है। लिक्विड के, ठीक है ना? तो वो लिक्विड के अंदर सरफेस टेंशन है, जो आप फोर्सेस कह रहे हो प्रेशर अंदर बाहर, वो तो वो सरफेस टेंशन फोर्स को बैलेंस कर रही है, तभी वो फट नहीं रहा। यस सर। आप समझ गए? यस यस। तो वो लिक्विड के अंदर है, ना कि वो एयर के अंदर है सरफेस टेंशन फोर्स। इज दैट क्लियर? यस। तो प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, वॉल्यूम,
you can define for gases as well as for liquids. But as far as surface tension is concerned, आप सिर्फ surface tension liquids के केस में define कर सकते हैं. You cannot define surface tension in case of gases. Is that clear? हाँ जी. Is that clear? Yes. One last thing, can you define capillary reaction for gases? No sir, No, sir. escape कर जाएगी गैस. क्योंकि गैस तो अगर मान लो ऊपर आपने बंद कर रखा है, ये इस तरह से हो मान लो, say this is the gas, you have kept a closed tube, so gas will fill entire tube. Yes, sir. So there is no such kind of phenomena as capillary reaction in gases. So please remember, capillary reaction or surface tension, they are peculiar to liquids only. They are not defined for gases. Sir, these properties. हाँ Sir, जी. can we talk about these properties for colloids and heterogeneous or homogeneous? For which material? Sir, like colloids or suspension. Yes. So that is the next topic. So till now we have been studying simple fluids. Simple means the most common fluids we see in our daily lives, and that is essentially water and air. So what you are saying is, because everything is not water and air, there are n number of different kinds of fluids, liquids, suspensions. So that is what we will study now. But Sir, sorry to interrupt, sir. हाँ सर जी. वो आपने चैट में वो क्वायरी है एक स्टूडेंट को, वो पढ़ी नहीं, वो माइक उसका वर्क नहीं कर रहा, वो बोल नहीं सकता. सर एक बार प्लीज देख लीजिए. अच्छा, एक सेकंड. जी सर. रमेश. ठीक है. तो ये सबको समझ आ गया? किसी को कोई डाउट? नो सर. ठीक है. अब मैं विस्कोसिटी, आई एम स्टार्टिंग विद न्यू प्रॉपर्टी विस्कोसिटी. विस्कोसिटी क्या है? Basically the thickness or the thickness Sir, tendency of the liquid. Sir, the resistance offered by the fluid. resistance to flow. ओके. तो इसमें बताओ पहले मुझे विस्कोसिटी, जैसे हमने सरफेस टेंशन बोली थी कोहेजन फोर्स, कैपिलरी रिएक्शन बोला था एडहेजन फोर्स, विस्कोसिटी में कौन सा फोर्स आएगी? Cohesion. हाँ जी, Cohesion. कोहेजन फोर्स. तो ये आपको बिल्कुल, यू शुड रिमेंबर दिस थिंग वेरी क्लियरली. विस्कोसिटी इज ड्यू टू कोहेजन फोर्स. हाँ जी, क्लियर है? सर क्योंकि सर मतलब उसके पार्टिकल्स मतलब आपस में मतलब वो करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, मतलब इसलिए सर. नहीं, रेजिस्ट नहीं करते. अब मैं बताता हूं. सरफेस टेंशन भी किस वजह से थी? कोहेजन फोर्स. विस्कोसिटी भी कह रहा हूं कोहेजन फोर्स. तो दोनों डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्यों डिफाइन करनी पड़ रही है हमें? सर विस्कोसिटी तो सर फ्लो के लिए होता है ना सर, यहाँ पे इसलिए डिफरेंट हुई. सरफेस टेंशन सर स्टैटिक पे डिफाइन होगा, स्टैटिक फ्लूइड्स के विस्कोसिटी तो किसी ये फ्लो है के लिए. स्टैटिक कंडीशन में और ये है डायनामिक कंडीशन में. दैट इज से मूविंग फ्लूइड. हाँ जी, क्लियर है? एनी डाउट? सर लिक्विड स्टैटिकली भी अगर रखा हुआ तो भी तो विस्कोसिटी की बात कर सकते हैं. विस्कोसिटी कर सकते हैं. अब मैं आपको पूछता हूं एक, एंड दिस इज
इसको बहुत आप ध्यान से अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं। से इन अ फैमिली, हम बोलते हैं फैमिली है, सभी लोग दे नो ईच एंड अदर वेरी वेल, ठीक है। सो देयर इज फोर्स ऑफ कोहिजन, ठीक है। फादर मदर हैं, ब्रदर सिस्टर हैं, देयर इज फोर्स ऑफ कोहिजन अमंग ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो मान लीजिए if there is some kind of external application of some force, मान लो बाहर से कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो what will happen? जो जितने फैमिली मेंबर्स हैं they will come together and fight the problem. हाँ जी, Yes. क्लियर है? हाँ जी. तो दो फैमिलीज थी, से F1 एंड F2। दूर से लग रहा है कि सब में कोहिजन फोर्स है, बहुत ज्यादा, आपस में बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ज्यादा प्यार है। अब मान लीजिए बाहर से एक्सटर्नल जब फोर्स आएगी या बाहर से प्रॉब्लम आएगी, तब वो कैसे रिएक्ट करते हैं? आपस में झगड़ते हैं कि अपना साथ देते हैं। सो दैट प्रॉपर्टी इज विस्कोसिटी। और अगर जब सब खुश थे तब तो दोनों फैमिलीज ही पूरा कोहिजन था, दैट इज सरफेस टेंशन। Please repeat last two lines. हाँ जी सर लास्ट स्टेटमेंट रिपीट करना प्लीज। मैं ये बोल रहा हूं विस्कोसिटी एक्चुअल में चेक होती है व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज बीइंग अप्लाइड। आप समझ रहे हो? जब बाहर से फोर्स एक खींचने की कोशिश कर रही है, मान लो यहां पे 4 लोग थे फैमिली में, एक्सटर्नल कोई इंसान आया, वो इसको खींचने लग गया बाहर और इसको भी खींचने लग गया, ऐसे खींचने लग गए, तो वो मूवमेंट होने नहीं दे रहे एक दूसरे के रिलेटिव। सो दैट इज विस्कोसिटी। अगर वो मूवमेंट ना होने दें तो इसको हम बोलते हैं ये हाईली विस्कस फ्लूइड है या हाईली वेल नेट फैमिली है, कि बाहर के फोर्सेस उसको हिला नहीं सकते आपस की इंटरेक्शन को। सो दे रेजिस्ट द एक्चुअल रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स। और सरफेस टेंशन क्या है कि यहां पे 4 पार्टिकल्स पड़े थे, बाहर से कुछ नहीं हुआ, इनमें आपस में इंटरेक्शन फोर्स है, काफी अच्छी इंटरेक्शन फोर्स है, एंड दैट इज डिस्प्लेड इन द फॉर्म ऑफ सरफेस टेंशन। तो प्रैक्टिकल दोनों केस में प्रैक्टिकली हाईली विस्कस। लेकिन सर सरफेस टेंशन के केस में सर बाहर से सर मतलब कुछ आया था, मतलब एक्सटर्नल एजेंट तो आया था ना सर, सर हाँ मतलब कुछ भी, तो सर ऐसा नहीं कह सकते कि सर उनके आपस में इंटरेक्शन था तो कुछ बाहर से नहीं आया। नहीं, सरफेस टेंशन तो पहली बात स्टैटिक कंडीशन में हम डिफाइन करते हैं, पहली बात ये क्लियर है? यस सर क्लियर है। ठीक है। जब हम फ्लूइड में डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में अट्रैक्शन से वहीं पे बैठे हैं, ठीक है। मान लो एक पानी का ग्लास पड़ा है, उसमें विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी डिफाइन कर सकते हो आप? मान लो एक ग्लास में वाटर पड़ा है, एक ग्लास में हनी पड़ा, आपने अभी कुछ नहीं देखा हुआ, आप विस्कोसिटी पता लगा सकते हो? हनी की ज्यादा है। हनी की ज्यादा होनी चाहिए सर वाटर। नहीं, वो कैसे पता चलेगा आप? सर नहीं, वो जो नहीं पता चलेगा सर। इसको सर, fluid जब स्टैटिक तक कंडीशन में तो नहीं पता चलेगा। नो जब सर। तक उसमें फोर्स अप्लाई ना करेंगे तो फोर्स अप्लाई करता तो हाँ, नहीं चलेगा। जब आप उसमें मान लो चम्मच घुमाने की कोशिश कर रहे हो, तब आपको पता चलेगा कि कितना लग रहा है फोर्स उस चीज को करने के लिए। हाँ जी, क्लियर है? सर मैंने हाँ जी। आपसे सर स्टार्टिंग में इसलिए पूछा था बिकॉज जो विस्कोसिटी होती है सर, बिकॉज न्यूटन तो ही सेज इंडिपेंडेंट ऑफ स्ट्रेस वो सेम रहती है, एंड जो आप बात कर रहे हो सर कि हम उसकी डायनेमिक्स पे ऑब्जर्व करते हैं विस्कोसिटी, वो तो सर सिर्फ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए नहीं होता। नहीं, न्यूटोनियन के लिए भी तो अभी मैं उस तक पहुंचा नहीं हूं, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं। जैसे आप ये बोलते हो, ये बोल रहे हो आप, शेयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू du by dy, है ना? यही बोल रहे हो ना आप? यस सर, यस सर। मैं इसी पे आऊंगा, लेकिन ये du by dy क्या चीज है? सर Rate of change of shear stress. रेट नहीं, du by dy रेट ऑफ चेंज Angular deformation. along y डायरेक्शन। यस सर, यस सर, तो इसमें वेलोसिटी आ गई ना, यस सर, इसका मतलब मोशन आ गया।
yes sir, yes. तो क्या आप विस्कोसिटी न्यूटन फ्लूइड के लिए स्टैटिक कंडीशन के लिए डिफाइन कर पाए? ठीक है सर, नहीं कर पाए ना? yes sir. तो मैं इसके ऊपर आऊंगा, बट इससे आने से पहले यू शुड अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में विस्कोसिटी है क्या। सर विस्कोसिटी जो म्यू मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर म्यू जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नहीं होता क्या? हाँ हाँ, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है। तो सर फिर आप मतलब बोल रहे हो डिफाइन नहीं कर पाए, थोड़ा नहीं नहीं, समझा वो नहीं। ये कह रहे हैं कि स्टैटिक फ्लूइड में आप विस्कोसिटी डिफाइन क्यों नहीं कर सकते। अब जैसे ये म्यू मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, यस सर, ये म्यू निकल के कैसे आया? तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जो भी हमारा जो फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर हाँ, मान स्ट्रेस लो के आप ऐसे डायरेक्टली। कह रहे हैं ना, टॉ वाज प्रोपोर्शनल टू du by dy, है ना? यस यस सर, अब ये du by dy क्या चीज है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो जब एक्सपेरिमेंट करोगे, मतलब जब फ्लो में नॉन जीरो u होगी, तभी आप कांस्टेंट निकाल पाओगे। यस सर, समझ गए आप? अच्छा तो, सर, हाँ समझ गया। तो स्टेशनरी फ्लूइड के लिए तो इसको डिफाइन नहीं कर सकते ना आप। नहीं कर सकते सर। इसको वैल्यू कब आएगी निकल के? जब आप यू एक्चुअली उस पर एक्सपेरिमेंट करोगे जिसमें वेलोसिटी y का कैसा फंक्शन निकल के आती है, उस हिसाब पे डिपेंड करेगा। यस सर, यस हाँ जी, क्लियर है? यस सर। तो विस्कोसिटी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से है, और सरफेस टेंशन भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। लेकिन इसमें स्टैटिक कंडीशन में है और विस्कोसिटी में वो मूवमेंट में है। जब फ्लूइड मूव करने की कोशिश करते हैं या पार्टिकल्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करने की कोशिश करते हैं, तो वो फोर्स डिस्प्ले होती है। सर जो हनी का केस है उसमें हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है, इसलिए विस्कोसिटी ज्यादा है। किसमें? सर हनी में जो ज्यादा विस्कस फ्लूइड है, हाँ, सर उसमें हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है। यू हैव आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब मुझे बताओ, डेंसिटी और विस्कोसिटी में क्या फर्क है? अब The मुझे बताओ। density basically Oil- mass upon volume है, ऑयल आपने और देखा? viscosity forces की वजह से है। ठीक है, ऑयल देखा आपने, यस सर। वाटर देखा है, दोनों में से डेंस कौन सा होता है? सर वाटर होता है, ऑयल ऊपर ऊपर फ्लोट करने यहाँ में। पे वाटर हो गया, और इसके ऊपर हो जाएगा ऑयल। ठीक है, और विस्कोसिटी किसकी ज्यादा होती है? सर Oil. ऑयल की। रो W is greater than रो O, but mu O is greater than mu W. हाँ जी, क्लियर है? यस सर। Yes sir. अब आप बताइए ऐसा क्यों है? क्योंकि आप जैसे आप हनी के बारे में कह रहे थे कि नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है इसलिए विस्कोसिटी ज्यादा है, यहाँ पे तो उलट हो गया। जी सर। कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा है ऑयल के अंदर। हाँ, ऑयल के अंदर कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा है। सो प्लीज रिमेंबर, जैसे हम मान लो इंडिया है, इंडिया इज अ हाईली पॉपुलेटेड कंट्री, सो इट इज हैविंग वेरी हाई डेंसिटी। अगर लोगों में आपस में रिस्पेक्ट नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो विस्कोसिटी होगी? नो सर। No sir. अब आप समझ गए? ट्राई टू कोरिलेट अपनी डेली लाइफ में। तो फोर्स ऑफ कोहिजन इज एक्चुअली विस्कोसिटी, और वो फोर्स ऑफ कोहिजन जो एक्चुअल कंडीशन में पता चलती है। ठीक है ना? आप चार फ्रेंड्स हैं, आप कह रहे हैं हम चारों एक दूसरे की बहुत हेल्प करते हैं, वो हेल्प कैसे पता चलेगी कि आप इतने आप में हेल्पफुल हैं कि नहीं? अगर कोई बाहर चीज आपको खींच रहा है और फिर भी आप चारों कनेक्टेड हो, then that means you are truly connected to each other, and that is displayed by viscosity. यस सर। हाँ जी, बताइए अब। हाँ जी, ठीक पूछिए। है सर, ठीक है सर, आ गया सर। बिल्कुल समझ आ गया ना? डेंसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन। सर जो मतलब विस्कोसिटी होती है वो कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, मतलब प्रॉपर्टी होती है उनकी। वो उनकी इंटरेक्शन कितनी स्ट्रांग है। अच्छा जी सर। ठीक है ना? आप अपने किसी दोस्त से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो, कोई बाहर वाला बंदा अगर उसको खींचने की कोशिश कर रहा है, आप उसको जाने नहीं दे रहे, so that means there is great viscosity in that system. सर हाँ जी, सर अगर कोहेसिव फोर्सेस ही है मेन उसका रीजन विस्कोसिटी का, तो उसको बदल भी तो सकते हैं किसी एक्सटर्नल एजेंट से, तो विस्कोसिटी चेंज करी जा सकती है। कैसे आप बताओ? वो पूछ रहे हैं सर कि अगर हाँ,
विस्कोसिटी मान लो अगर मैं मेरे पास, आपने ये देखा भी होगा कि मेरे पास ऑयल है, ठीक है, या तो आपने एक चीज बताओ मुझे, आपने इंजन ऑयल देखा है कहीं पे? कितना इंजन ऑयल देखा है जो गाड़ी में ऑयल डालते हैं? यस सर, देखा है। बहुत विस्कस होता है ना सर वो तो डर्ट के बाद होता है ना सर, विस्कस नहीं, पहले विस्कस होता है, अगर आप ध्यान से देखो पहले विस्कस ज्यादा होता है, पहले ज्यादा होता है सर, फिर और डर्ट उसके के बाद वो कारण जब फिर ब्लैक हो जाता है तो उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। तो टेम्परेचर का लिक्विड की विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट होगा, आप क्या समझते हैं? कम हो Decreases the temperature viscosity. lower the viscosity. So as temperature increases, viscosity decreases in case of liquids. सर वाटर और हनी को मिक्स करके हीट करते हैं तब भी कम हो जाती है सर हनी की। हाँ, नहीं वो तो आपने क्या किया एक्चुअली, अगर हनी वाटर में मिक्स हो रहा है इसका क्या मतलब है? हनी डाइल्यूट हो रहा है। मान लो कोई चीज मिक्स हो रही है, इसका मतलब अब एडहेशन फोर्सेस भी आगे बीच में। Yes. तो तभी अगर आप मैं बोलूं कि हनी की विस्कोसिटी से म्यू एच है, वाटर की विस्कोसिटी म्यू डब्ल्यू है, और मिक्सचर की म्यू एम है, तो म्यू एम किसके बीच में होगी? इट विल बी ग्रेटर देन म्यू डब्ल्यू बट लेस देन म्यू एच। यस सर। हाँ जी, क्लियर है? So you जी have सर। actually prepared a new fluid with viscosity mu m. ठीक है ना? जी सर। जी सर। इसकी भी फिर अलग करेक्टरिस्टिक होगी कि टेम्परेचर से ये कैसे डिक्रीज करती है। तो ऐसे हो सकता है कि भाई वाटर टेम्परेचर से मान लो ऐसे डिक्रीज कर रहा है, हनी मान लो ऐसे डिक्रीज कर रहा है, और जो आपका मिक्सचर है वो ऐसे डिक्रीज कर रहा है। सो दे विल हैव अ करेक्टरिस्टिक कर्व, क्योंकि वो मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। यस सर। कर्व आपने टेम्परेचर और किसके बीच में बनाया है? फ्लूइड के बीच में। हाँ, ये हो गया आपका, मान लो एक सेकेंड, ये हो गया आपका, ये होगी मान लो आपका टेम्परेचर, और ये मान लो विस्कोसिटी है। तो विस्कोसिटी कम हो रही है टेम्परेचर से ज्यादा बढ़ने से, तो तीनों के इसमें कम हो रही है, लेकिन किसी में कैसे कम हो रही है, किसी में कैसे कम हो रही है। हाँ जी, क्लियर है आयुष? यस सर, क्लियर है। तो प्लीज रिमेंबर, लिक्विड्स normally in all liquids viscosity decreases with increase in temperature, but सर गैसेस के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करने पे विस्कोसिटी भी इंक्रीज होगी। हाँ, that is there, so that is something else. So in case of gases, with increase in temperature viscosity also increases. तो ये उस तरह से है कि अब ये क्या है, वो तो फैमिली वाली बात थी लिक्विड्स में। अब गैसेस में क्या है, there is very less force of attraction between the molecules, ठीक है? मान लो एक यूएसए में रहता है दोस्त, एक इंडिया में रहता है दोस्त, तो क्या होगा, आपस में कोहेजन फोर्स कब बढ़ेगी? दोनों दोस्त पास पास रहेंगे, मतलब पास पास तो रह नहीं सकते, क्योंकि जैसे गैसेस में पास पास नहीं होते, तो कैसे हो सकता है कि ये यहां पे जाए, कभी ये यहां पे आए, तो जितना फ्रीक्वेंसी होगी आपस में आना जाना लगा रहेगा, उतनी इंटरेक्शन बढ़ेगी। यस सर। क्लियर है? यस। तो जो गैस की दो लेयर्स है मान लो, तो जितनी इन गैस की लेयर्स में इंटरेक्शन बढ़ेगी तो क्या होगा, वो कोहेजन हो जाएगा, सबके बीच में कोहेजन उतना उनमें इफेक्टिव कोहेजन बढ़ जाएगा। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। यस सर। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स में एनर्जी ज्यादा आ रैंडमनेस जाएगी बढ़ेगी और वो इंटरेक्ट ज्यादा कर सकेंगे आपस में। सो दैट्स व्हाई इन गैसेस with increase in temperature viscosity also increases. Yes sir. Clear? Yes sir. Yes sir. Remember, liquid is just like our family because we are close together. ठीक है? तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारी विस्कोसिटी कम होगी,
because each one of us are feeling that temperature. But in case of gases which don't have inherent attachment with each other, उनमें attachment आपस में है ही नहीं, तो interaction बढ़ेगी कैसे? अगर आपस में आना जाना ज्यादा होगा. और वो कैसे होगा? When you have higher temperature. Higher temperature means more chances of this particle reaching this place and more chances of this particle reaching this place. So they will actually transfer their energy to each other. हाँ जी, clear है? Yes, sir. Any doubts? No, sir. No, sir. So I will break for today then. We have actually completed with overall view of nearly all the properties. अब हम next जो होगा, अब हम fluid mechanics के तौर पे जो viscosity का रोल है, because अभी तक हम उसके interactions को देख रहे थे, लेकिन जब हम water flow कर रहा है, जो आप no slip condition, वो सब कुछ, वो सारा कुछ हम कल इसको डिस्कस करेंगे. एंड प्लीज गो थ्रू द लेक्चर. मैं इसको भी सेंड कर दूंगा आज. एंड मन प्लीज. Yes sir, I forwarded the lectures already. They have been used. ठीक है. सो एवरीवन प्लीज गो थ्रू दो लेक्चर्स. ये मैं आपको आज शाम तक अपलोड कर दूंगा ये लेक्चर.